Dermatology, cells of the epidermis, different cells present under different cell layer. So unit is epidermal melanin unit, 1:36 turnover time. After that we gonna study the different cells and the different layers. So this is first is keratinocyte, that is केराटिन कंटेनिंग सेल. देन ल्यूसिडम जो कि प्रेजेंट होते हैं सिर्फ पाम एंड सोल्स पे. देन ग्रेनुलोसम जो कि केराटिनोहाइलिन जो कि फिलिग्रीन प्रोटीन एंड लेमिलर ऑर्डलैंड बॉडी. स्पाइनोसम स्पाइन कंटेनिंग थिकेस्ट लेयर यही होती है एंड इट कंटेन डेस्मोग्लिन एंड लैंगरहैंस सेल. डेस्मोग्लिन, डेस्मोप्लेकिन, डेस्मोकोलिन एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल S1A, CD207, S100. Then basal cell, melanocyte and Merkel cell. Melanocyte contain one melanocyte contain 36 and Merkel cell CK20 positive. Then hyperkeratosis. Now we go one by one. First is keratin containing, that is hyperkeratosis. Hyperkeratosis PAL. PAL मतलब अपने दोस्त, that is PAL is psoriasis. Then acanthosis nigricans, lichen planus, and parakeratosis is PEAS. P for PEAS. PEAS is psoriasis. Then E for eczema, A acanthotic keratosis. After that seborrheic keratosis. Then orthokeratosis is lichen planus, that is hyperpara. Hyper minus para. Hyper minus para is lichen planus. After that डिस्केराटोसिस इज 10 मुझे होले होले डर मत, दैट इज 10 होले होले हेली हेली एंड डर डेरियर 52 डिजीज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा. आफ्टर दैट एग्रेनुलोसिस मीन्स एब्सेंट द ग्रेन्यूल्स. नाउ सोरियासिस के पास क्या हुआ, सब कुछ ज़्यादा है, लाइक हाइपरकेराटोसिस है, उसके पास पैराकेराटोसिस है. सो अपन उसको बोलेंगे अब तुझे ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे. सो एग्रेनुलोसिस इज द सोरियासिस. हाइपरग्रेनुलोसिस जो बेचारे लाइकन प्लेनस जो कि ऑर्थोकेराटोसिस वाला था उसके पास आ जाएगा. After that filigreen antibody present in the I for ichthyosis. After that Ordland antibody जो कि absent होती है steatotic eczema. Acanthosis increase the spine layer. Again psoriasis, acantholysis breakdown है ना. So that is the pemphigus. Spongiosis, स्पॉन्ज की दो लेयर होती है ना, अपने जो बर्तन धोते हैं वो स्पॉन्ज होता है, उसके दो लेयर, उनके बीच के अंदर जाता है पानी है ना. तो दैट इज इंटरसेलुलर, मतलब इन बिटवीन द सेल्स है ना. और बैलूनिंग, बैलून के अंदर जाता है तो इंट्रासेलुलर. बैलून के अंदर जब अंदर हवा जाती है तो अपन हंसते हैं ना, सो हंस HSV. एंड इंटरसेलुलर इज एक्जिमा. बेसल सेल डिजनरेशन, डिजनरेशन मतलब खराब हो गया मतलब लाइकन प्लेनस दिल्ली, लाइकन प्लेनस कौन कौन खराब हुआ, सिवेद खराब हुआ, दिल्ली खराब हुआ, और उसमें दिल्ली खराब हुआ और LP और LV सब खराब हो गए. मतलब मैक्स जोसेफ स्पेस, सिवेट, कॉलॉइड बॉडी, LP, DLE, ल्यूपस वल्गैरिस. एंड देन K5 और 14 जो कि प्रेजेंट होता है एपिडर्मल डर्मोड जंक्शन पे, उसके अंदर आ जाता है एपिडर्मुलोसा बुलोसस डिजीज. ठीक है ना. अपन ने क्या पढ़ा इसमें, केराटिनोसाइट जो कि क्या होते हैं ओडलैंड, और केराटिनोसाइट जो कि प्रेजेंट होती है 28 डेज ये बेसल सेल से केराटिनोसाइट जाने में और रिलीज होने में 56 डेज. ल्यूसिडम, पाम एंड सोल, ग्रेनुलोसम, that is keratohyalin, filigrean, lamellar ordland. Then spinosum, thickest layer, desmoglein, Langerhans cell, desmoglein, desmoplakin, desmocolin, antigen presenting cell S1A, S100. Then basal cell, melanocyte and Merkel cell. Hyperkeratosis dost, that is PAL, that is psoriasis, acanthosis nigricans, lichen planus. Then parakeratosis PEAS, that is psoriasis, eczema. Then A for acanthosis keratosis, and as for seborrheic keratosis, orthokeratosis, lichen planus. Dyskeratosis 10 होले होले, that is होले होले diarrhea disease. Agranulosis again the psoriasis. Hyper ortho, that is lichen planus. Filigrean is ichthyosis. Ordland is eczema, steatotic eczema. Acanthosis increase the spine layer, it is again in the that क्या बोलते हैं सोरियासिस. एक्एंथोलाइसिस मतलब एब्सेंट, ब्रेक डाउन ऑफ द एक्एंथोसिस मतलब ब्रेक डाउन है ना. so that is in the psoriasis, pemphigus, acantholysis, pemphigus. Then spongiosis, in between the sponge, intercellular, and it is present in the eczema. And ballooning, that is hussy, HSV. After that basal cell degeneration, Max Joseph space, civate, colloid body, and then DLE, lichen planus. After that basal cell, that is epidermodermal junction, K514, that is present epidermolysis bullosa syndrome. आफ्टर दैट माइक्रो एप्सिस कहाँ होते हैं. माइक्रो एप्सिस के लिए ऐसे याद किया कि न्यू पपड़ी, काजोल, सोरिया,
ले आई, ठीक है, न्यू पपड़ी काजोल ले आई जो कि सो रही है, दैट इज न्यू न्यूट्रोफिलिक पपड़ी पेपिलरी डायबिटिक हर्पेटिफोमिस। सो न्यू पपड़ी न्यूट्रोफिलिक पेपिलरी डायबिटिक हर्पेटिफोमिस, न्यू पपड़ी। मुनरो, मुनरो इज सोरियासिस, मुनरो। और काजोल, काजोग इज सोरियासिस, कोजोग पश्चूर, दैट इज सोरियासिस। सो न्यूट्रोफिलिक न्यू पपड़ी काजोल सो रही है, मुनरो, मुनरो काजोल सो रही है, that is psoriasis, Munro और Kojok, and पपड़ी that is papillary diabetic herpetiformis, जो अपन गोलगप्पे की पपड़ी होती है वो। And after that lymphocytic is Pottier, that is Mycosis fungoides, eosinophilic vegetans. After that एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस कंटेन द इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर, कोलेजन 1 एंड कोलेजन 1 रेशियो, कोलेजन 3 इज 4:1। देन हाइपोडर्मिस फैट, इन्फ्लामेशन, पेनिकुलाइटिस, लोबुलर पेनिकुलाइटिस, एपिडर्मा इंड्यूरेटम, सेप्टल पेनिकुलाइटिस, एपिडर्मा नोडुसम। इरिदिमा, शिन लीजन, इरिदिमा नोडुसम, सेप्टम पेनिकुलाइटिस, sarcoidosis, Behcet disease, then sulfa drug, then streptococcus, pregnancy, OCP, erythema nodosum, septal paniculitis. And that is अपन ने देखा ना कि डर्मिस है, इलास्टिक फाइबर है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर है, कोलेजन 1:3 का जो कोलेजन टाइप 1 और टाइप 3 का जो रेशियो होता है 4:1 होता है। उसके बाद उसके नीचे हाइपोडर्मिस आता है, फिर फैट आता है, फैट का अगर इन्फ्लामेशन हो गया उसको पेनिकुलाइटिस बोलेंगे, अगर लोबुलर पेनिकुलाइटिस हुआ उसको इरिदिमा इंड्यूरेटम, और सेप्टल पेनिकुलाइटिस हुआ उसको इरिदिमा नोड्यूसम। सो सिन लीजन, इरिदिमा नोड्यूसम इज सेप्टल पेनिकुलाइटिस, दैट इज सार्कोइडोसिस, बेहसेट। देन ड्रग, सल्फा ड्रग, infection, streptococcus, pregnancy, OCP, ulcerative erythema, induratum, hypersensitivity reaction of the TB, evascent non-pleuritic erythema marginatum, that is rheumatic heart disease worsen with the heat. After that erythema multiformis, chloroquine, NSAID, sulfa drug, mycoplasma, HSV। ये टारगेट लीजन्स होते हैं वो अपने माइकोप्लाज्मा में होता है, एचएसवी में होता है, क्लोरोक्वीन, एनएसएआईडी, सल्फर ड्रग, इरिदिमा माइग्रिकेंस, लाइम डिजीज, स्टिक बाइट पैटर्न, इरिदिमा गायरेटम, नेपन्स, risk of GI malignancy, NME, that is neurolytic migratory erythema, that is glucagonoma, erythema toxicum neonatum, eosinophil। then hair cycle phases, ACT, that is anagen, catagen, telogen। एनाजन में हेयर लॉन्गेस्ट होता है 3 ईयर, कैटाजन 3 वीक, टीलोजन रेस्ट होता है 3 मंथ पे होता है। मेल लाइक हैम्बिल्टन पैटर्न होता है, फीमेल लाइक ल्यूडविंग पैटर्न होता है। ट्रीटमेंट होता है मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्टेराइड। देन एनाजन ई फ्लूएम पोस्ट कीमोथेरेपी, टीलोजन ई फ्लूएम दैट इज अक्यूट स्ट्रेस एंड पोस्ट पार्टम 3 मंथ के लिए हो जाता है। तो अपन इसमें ऐसे याद रख लेंगे, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन, एनाजन 3 ईयर, कैटाजन 3 वीक, टीलोजन 3 मंथ, 3 ईयर फिर वीक फिर मंथ, है ना। ACT एक्ट 90% टाइम जो सेल होते हैं ना वो एनाजन फेज में ही रहते हैं, ठीक है। तो एनाजन ई फ्लूएम पोस्ट कीमोथेरेपी हो जाएगा। आफ्टर दैट कैटाजन, इसमें क्या होता है, ग्रोथ रुक जाती है, फोलिकल इन्वॉल्यूट्स हो जाते हैं। एंड टेलोजन में तो रेस्ट पे है ही। और टेलोजन ई फ्लूएम कब होएगा, जब अक्यूट स्ट्रेस आया, जैसे कि पोस्ट पार्टम, लगभग 3 मंथ के अप्रोक्स, है ना। आफ्टर दैट नॉन स्कैरिंग एलोपीशिया होता है, एलोपीशिया एरियाटा, जिसमें क्या होता है कि स्वाम ऑफ बीज अपीयरेंस होता है, एक्सक्रीमेटिंग साइन होता है, थिक थिन मार्जिन, अगर मार्जिन इन्वॉल्व है, अगर मार्जिन है तो ओ नहीं बन जाएगा, और अगर स्पेयर है तो एस, तो इसमें ओ और एस से कुछ नाम आता है वो प्रेजेंट है। देन डिफरेंट लेंथ होती है, वो क्या हो जाएगा, पेरीफोलिकुलर हीमेरेज, ट्राइकिटोमेनिया, बिजवार और ट्रक्साइन रुपेंजल सिंड्रोम। देन जेनाइटल अल्सर विच पेशेंट इग्नोर, मोथ ईटन, एलोपेशिया, सेकेंडरी सिफिलिस, ठीक है। डिफरेंट लेंथ एकैंथोटिक एरियाज, डिफरेंट लेंथ के अगर हैं और पेरीफोलिकुलर हीमेरेज है तो ऐसे होता है ट्राइकिलोमेनिया, बेजवार होता है वो, और रुपेंजल सिंड्रोम। और अगर जेनाइटल अल्सर होते हैं जो पेशेंट इग्नोर कर देता है, और मोथ ईटन एलोपेशिया, ये तो होते हैं अपने सेकेंडरी सिफिलिस। तो अब तक अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो पढ़े थे अपन ने सेल्स ऑफ द केराटोसिस, तो उसमें हाइपर केराटोसिस वो सब आ जाएगा, पाल पीज, आफ्टर दैट है ना, पाल पीज था। उसके बाद ऑर्थो केराटोसिस में हाइपर पैरा जो कि लाइकन प्लेनस था, डिस्केराटोसिस दिस, हेले हेले डेरियर, बावंटी जी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, देन ग्रेनुलोसम एग्रेनुलोसिस, सोरेसिस,
hypergranulosis, lichen planus becomes stria, then filigree, odland, then filigree के बाद था odland, sorry, filigree is ichthyosis, odland is aesthetic eczema, then acanthosis increase the spine psoriasis, acantholysis is pemphigus spongiosis, in between na, so it is the eczema, and after that ballooning is the HSV. Basal cell degeneration वही max cavate colloid and DLE lichen planus lupus vulgaris, then K514 epidermolysis bullosa. माइक्रो एप्सिस पपड़ी काजोल सो रही है, मुनरो पपड़ी, पपड़ी मुनरो काजोल सो रही है, दैट इज पपड़ी, दैट इज पेपिलरी डी डायबिटिक हर्पेटिफोमिस, देन पपड़ी काजोल मुनरो, मुनरो और कोजोग इज सोरियासिस, आफ्टर दैट लिम्फोसिटिक, लिम्फोसिटिक इज पॉटशर माइकोसिस फंगोइडोसिस, एंड देन इओसिनोफिलिक इज वेजिटेंस, यू वेजिट मतलब यू वेजिटेबल ओ यू, देन एपिडर्मिस डर्मिस, डर्मिस किसका बना होता है, इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर, टाइप 1 टाइप 3 4:1, देन फैट का इन्फ्लामेशन पैनिकुलाइटिस, लोबुलर पैनिकुलाइटिस एपिडर्मोलाइसिस इंड्यूरेटम, सेप्टल पैनिकुलाइटिस इरिथेमा नोड्यूसम, आफ्टर दैट इरिथेमा स्किन लीजन इरिथेमा नोड्यूसम, सेप्टल पैनिकुलाइटिस सार्कोइडोसिस बेहसट, then sulfa drugs, streptococcus pregnancy, OCP, ulcerative erythema induratum, hypersensitivity reaction of the TB. अगेन आई एम नॉट गेटिंग इट कम्प्लीटली, सिन लीजन होता है, अगर वहाँ पे अपन को इरिथेमा नोड्यूसम ऐसे दिखा तो वो उसके लिए अपन जाएंगे कि ये सेप्टल पेनिकुलाइटिस है, क्योंकि सेप्टल पेनिकुलाइटिस का एग्जाम्पल भी क्या था, इरिथेमा नोड्यूसम, ठीक है। उसके कहाँ का होता है इरिथेमा नोड्यूसम, हाँ मुझे इतना याद है सार्कोइडोसिस में होता है, ठीक है, सार्कोइडोसिस सल्फा ड्रग्स याद है ना, तो सार्कोइडोसिस बेहसट सल्फा ड्रग्स और स्ट्रेप्टोकॉकस प्रेगनेंसी ओसेपे, ठीक है। अल्सरेटिव, अगर अल्सर्स हो गए और उसमें इंड्यूरेशन प्रेजेंट है, इरिथेमा इंड्यूरेशन, वो तो टीबी का होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया टीबी। इवेनिसेंट है, नॉन प्यूराइटिक है, खुजली नहीं चल रही, इवेनिसेंट टाइप का है, तो इसमें अपन ने बोला था मार्जिनेट द पेशेंट ऑफ र्यूमेटिक हार्ट डिजीज, मैम ने बोला था ना कि मार्जिनेट द पेशेंट ऑफ र्यूमेटिक मतलब मार्जिनेटम र्यूमेटिक हार्ट डिजीज वर्सन विद द हीट, देन इरिथेमा मल्टीफोमिस दैट इज बुल्स आई, क्लोरोक्विन NSAID, सल्फा ड्रग, माइकोप्लाज्मा HSV, दैट इज, एक तो ये टारगेट लीजन्स होते हैं, तो क्लोरोक्विन NSAID सल्फा ड्रग माइकोप्लाज्मा HSV, इरिथेमा माइग्रिकेंस लाइम डिजीज पैटर्न इरिथेमा गायरेटम, एंड एनेमी ग्लूकानोमा टॉक्सिक नियोनेटम इओसिनोफिल।